Good evening everyone, welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. We are entering into the another day of your CUT examination and we will be starting with a very important topic, that is tenses. So better to start the topic, I really want to know from you all that what do you mean by tenses बच्चे. Tenses होते क्या? What does tenses mean? ये जो word है tenses उसका क्या मतलब होता है? Class, if you time. Yes, of course, it has been derived from a Latin word that is tempus. Right? Tempus simply means time. To know about tenses in depth, we must know the sentence structure, the formula for sentence structure. I really want to revise this formula again with you all. So the sentence structure starts from subject, it carries helping verb and object. So what do you mean by subject बच्चे? What is a subject? Subject is anything that performs action. Anything that performs action is known as subject. Helping verb is a verb which helps main verb. This is the main verb, action word, right, to complete the sentence. And one of the most important job of helping verb is that we come to know about the tense, or we can say कि we are able to identify the type of tense which is being used in sentence with the help of helping verb. यानी tense identification. And action words, they are known as verbs. And what do you mean by object? Object is anything that receives the action. That receives the action. Is it clear, beta? Okay. Yes, sir. So if we talk about tenses, we are having three main type of tenses. The very first would be the present tense. The second one is past, and the third one is future. They are further segregated into simple present, simple past, and simple future, right? Present continuous or progressive, past continuous or progressive, and future continuous or progressive. This is the very first one, and this would be the second one. The third subcategory of tenses is present perfect continuous, followed by past perfect continuous, followed by future perfect continuous. The last subcategory of tenses is present perfect, followed by past perfect, and followed by future perfect. Is there any problem with the same, bachche? I'm not going into detail as we have already done this in our English classes. I'm just going to brush up things for you so that it would be quite easy for you to revise the tenses part. Clear hai, bachche? Yes, sir. Okay. So moving with the very first tense, the very first tense is present tense. Okay, wait a minute. Present tense. We will be discussing the very first category of subcategory of present tense, that means simple present. Okay, simple present beta, it helps to express universal फैक्ट्स. जितने भी यूनिवर्स के फैक्ट्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है. रूटीन्स को एक्सप्रेस करने के काम आता है. एंड इट हैज़ ए रूल जिसमें एस और ई एस करता है. ये किस तरह से करता है? इफ़ यू टॉक अबाउट द रूल फॉर सिंपल प्रेजेंट, द रूल सेज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. ठीक है, अब
अगर हम इसके पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव में आई टेक एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो होते हैं बेटा डू एंड डस। डू किसके साथ लगता है? डू लगता है आई, वी, यू, दे। डज आता है थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट, ठीक है। तो अगर हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस लिया है जिसमें हम कहते हैं, गिव मी मिनट, पॉजिटिव सेंटेंस है शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव क्या बनाएगा? शी डजंट, क्योंकि शी यूज हो रहा है थर्ड पर्सन, इसके साथ डज आएगा, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, डजंट गो। अब जब डजंट आ जाएगा बेटा, ईएस रिमूव हो जाएगा वर्ब से, वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। शी डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं शी या राम डजंट लाइक टू ईट पिज्जा। ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? कौन बताएगा? Likes to eat pizza. राम, वेरी गुड, लाइक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, टू ईट पिज्जा। क्लियर है बच्चे? ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, रूल्स पे ध्यान देना बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसका जो रूल है, द रूल सेज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है इज, एम, आर। इस किसके साथ यूज होता है बेटा? सिंगुलर क्वांटिटी के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, शी, इट, नेम। आई किसके साथ यूज होता है? आई के मतलब आम किसके साथ यूज होता है? आई के साथ। और जितने भी प्लूरल हैं जैसे दे, वी, दे आर, वी आर, यू इज इन एक्सेप्शनल, तो आर जो है दे, वी, यू के साथ आता है। क्लियर है बच्चे? जैसे कि कोई चीज प्रेजेंट में हो रही है मगर वो एक्शन जो है, वो जो चीज हो रही है वो खत्म नहीं हुई है, कंप्लीटेड नहीं हुई है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर है बेटा? जैसे कि अगर मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस एग्जांपल में लूं, देन द पॉजिटिव सेंटेंस वुड बी ही इज फ्लाइंग टू यूरोप he is flying to Europe currently। तो वो यूरोप के लिए उसने अपनी फ्लाइट जो है वो पकड़ी है और उसने बोर्ड किया, अभी भी वो यूरोप जो है अपनी फ्लाइट में जा रहे हैं। क्लियर है बेटा जी? क्लास? ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ योर टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या कहता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? हैव और हैज। हैज किसके साथ लगता है?
ही, शी, इट नेम के साथ। हाई हैव किसका लगता है? आई, वी, यू, दे के साथ। ठीक है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। जैसे कि अगर मैं बोलूं जो चीज अभी अभी हुई है, एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो किसके अंदर आएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएगा। समझ आया बच्चे? जैसे कि उसने खाना खा लिया है या मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन दी फूड। मैंने खाना खा लिया। मैंने कब खाना खाया? मैंने अभी अभी खाना खाया। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्शन ऑफ ईटिंग माई फूड रिसेंटली। अभी अभी मैं ये एक्शन जो है उससे कंप्लीट कर चुका हूं। क्लियर है बच्चे? क्लास ओके। We are moving to next category of your present tense and we will be now talking about present perfect continuous. Present perfect continuous. Again, perfect क्या होता है? verb का थर्ड फॉर्म। continuous क्या होता है? verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. What does our rule says? हमारा रूल कहता है subject प्लस helping verb प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये गलत है। हमने यूज करना है जब भी कंटिन्यूस आएगा तो कॉन्टिन्यूटी का जो फॉर्मूला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो ही डोमिनेट करेगा। तो हमारा रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। दिस वुड बी द राइट फॉर्मूला फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस, whether it is a present perfect continuous, whether it's a past perfect continuous or whether it's a future perfect continuous. क्लियर है बेटा जी? ओके, अब यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन के साथ क्या आएगा? आई, वी, यू, दे। हैज के साथ क्या आएगा? थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, नेम। क्लियर है बच्चे? अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किसको एम्फसाइज करता है बेटा? ये टाइम स्पैन को एम्फसाइज करता है। तो दो चीजें यहां पे यूज होंगी, एक होगा फॉर, एक होगा सिंस। ठीक है, फॉर तब यूज होता है जब टाइम जो है नॉन स्पेसिफिक होता है, जब वो स्पेसिफिक नेचर में नहीं होता। और सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमारा टाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर है बच्चे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, वेट फॉर ए मिनट। इसका एग्जांपल है सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, कुछ घंटों से बारिश हो रही है। इट हैज बीन raining for few hours. क्लियर है बेटा जी? sir. बेटा क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? No sir. यस बच्चे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? पास्ट टेंस की। तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का रूल क्या है बेटा? सिंपल पास्ट का रूल कहता है सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट है, जब हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं फॉर्मूला में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हमने क्या किया, देखो ऊपर हेल्पिंग वर्ब है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, सेकंड फॉर्म। मगर नीचे वाले रूल में जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड किया तो हमारा जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो किस में चेंज हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो होता है डिड विद ऑल सब्जेक्ट्स। आई गिव यू एग्जांपल, जैसे मैं कहूं आई वेंट टू रोम लास्ट मंथ, तो हमने यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, नहीं यूज किया है, इसलिए हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव या इसको पॉजिटिव में लिखते हुए हेल्पिंग वर्ब ऐड करूं, जैसे मैं कहता हूं आई डिड गो टू रोम लास्ट मंथ, तो यहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या, मेरा डिड मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा जो वर्ब का सेकंड फॉर्म था वेंट वो किस में कन्वर्ट हो गया, गो में, जो कि मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई डिड गो टू रोम लास्ट मंथ। बेटा क्या ये ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है क्लास? ये एब्सोल्युटली सही सेंटेंस है बच्चे। आई एम फॉलोइंग द रूल। रूल कहता है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं तो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता तो मैं इसका नेगेटिव ये बनाता, आई डिडंट गो टू रोम लास्ट मंथ। तो बेटा ये जो फॉर्मूलाज हैं, यू रियली नीड टू be particular and specific about the formulas that you are using in the sentence making. Clear है बच्चे ये? Okay. We are moving to past continuous. I'm so sorry. Now we will be talking on past continuous tense. Past continuous tense क्या होता है बेटा? इसका जो रूल है it is quite simple. अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब दो ही हैं, वॉज एंड वर। जो सिंगुलर है उसके साथ वॉज यूज होगा, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, राम वॉज। वर्क किसके साथ यूज होगा? वी, दे, यू। ठीक है, अब अगर मैं कहूं राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, तो इसका सिंपल सेंटेंस आएगा राम एंड श्याम वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, राम एंड श्याम वर प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं दे यूज करता हूं, ये मतलब कि वर क्यों यूज किया? क्योंकि देयर आर मोर देन वर पर्सन, राम एंड श्याम। अब मैं खाली बोलूं राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है बच्चे? इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड सब कैटेगरी ऑफ योर पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट। जैसे कि वी ऑल नो परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट? जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी परफेक्ट का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। बेटा जो एक्टिविटी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं,
और जिन एक्टिविटीज को काफी टाइम हो गया, लॉन्ग एगो हुई है, कंप्लीट हुई है, उससे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया ना, अभी अभी खाना खत्म किया, ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। और मैं कहता हूं मैं खाना खा चुका था, अब मुझे खाना खाए हुए काफी टाइम हो गया है, काफी समय हो गया है, एंड दिस सेंटेंस विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पास्ट परफेक्ट, दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? मैं या वह सो चुका, वो अभी अभी सोया है, वह जा चुका, वह अभी अभी गया है, ये किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, वह जा चुका था, पास्ट परफेक्ट। वह सो चुका था, पास्ट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसे सोए हुए अभी काफी टाइम हो गया है। क्लियर है बच्चे? क्लास क्लियर है? Yes, sir. ओके, वी आर मूविंग टू दी लास्ट। यस बच्चे, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से? सर वो दोबारा रिपीट कर दो। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, कोई एक्टिविटी जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है उसको हम कैटेगराइज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको कंप्लीट हुए हुए काफी टाइम हो चुका है उसको हम कैटेगराइज करेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। जैसे कि वह जा चुकी है, वो अभी अभी गई है, रिसेंटली गई है ना, वह जा चुकी है, शी हैज गॉन, रिसेंटली गई है। ये क्या आ गया? ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब वो जा चुकी थी, शी हैड गॉन, और जो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, वो सिर्फ हैड है विद ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर है अब? Yes, sir. Okay. Now we will be coming to the last subcategory of your past tense, that is past perfect continuous। ठीक है बच्चे? अब past perfect continuous का जो रूल है वो कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन विद ऑल सब्जेक्ट्स। अब आप बोलोगे सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट हुआ था, है ना, मगर अभी भी हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्शन नॉट कंप्लीटेड, बट इट वाज स्टार्टेड इन पास्ट। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? कोई एक्शन पास्ट में बिगिन हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, एंड इट इज कंप्लीटेड, और वो कंप्लीट हो चुका है। इसलिए यहां पे टाइम स्पैन को इंपॉर्टेंस दी है सिंस और फॉर एग्जाम्पल, सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। अब बारिश कब शुरू हुई है? पास्ट में। कब? सुबह 6 बजे, है ना, और अभी भी हो रही है, मतलब कि ऑन गोइंग है। अब मैं बोलूं सुबह 6 बजे से बारिश हो रही थी, यानी बारिश कब शुरू हुई थी? सुबह 6 बजे, और अब खत्म हो चुकी है, अब वो ऑन गोइंग नहीं है। क्लियर है बच्चे? क्लास, इज इट क्लियर? Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, जैसे कि आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। ठीक है, डू वॉच दीज एग्जांपल्स। इट हैड बीन रेनिंग सिंस नून। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं इट हैज बीन रेनिंग सिंस नून। अब दोनों में क्या फर्क है?
इट हैड बीन रेनिंग सिंस नून, मतलब कि बारिश दोपहर में शुरू होके दोपहर में ही, मतलब दोपहर में शुरू हुई थी मगर अब नहीं हो रही है। इसका मतलब है बारिश जो है वो दोपहर में शुरू हुई थी और अभी भी हो रही है, ऑन गोइंग, एंड इट मीन्स कंप्लीटेड। क्लियर है बेटा जी क्लास? ओके, सो वी आर डन विद योर पास्ट and present tense. I want you people to see it at a micro level. अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। कल हम जल्दी से फ्यूचर टेंस शुरू करके ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम एक न्यू टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बच्चे? यस सर। Yes, sir. थैंक यू।